और एक जेई क्वेश्चन, लेट E1 x square by a square plus y square by b square equal to 1. A is greater than b. Let E2 be another ellipse such that it touches the end points of minor axis of E1. E1 means this ellipse. And the foci of E2 are the end points of minor axis of E1. If E1 and E2 have same eccentricities, then it values. JEE Mains 2021. Very simple question, concept based question. So what will be the diagram of this question? Now this is a diagram. This is an ellipse of E1. Here it is, x or x dash, y or y dash. According to question, here a is greater than b, so this will be a comma 0. This is minus a comma 0. This is 0 comma b, and this is 0 comma minus b. Here, this is E1 ellipse. Now E2 be the another ellipse such that it touches the end points of minor axis of E1 and the foci of E2 at the end points of minor axis of E1, touches the minor axis. E2 be the another is such that it touches the end points of minor axis not. This will be major axis. I think so. Major axis. This is major axis of E1 and foci of E2 are the end points of minor axis of E1. So now what will be the diagram here? मतलब डायग्राम को कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो है एलिप्स ऐसा होगा, टचेस द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस. Here is the diagram, and this becomes another ellipse. This is called E2. This is E1 and this is E2. Here it is. Now foci, this will be the focus, y o y dash. Here is it. So now here इसका मैं ले लेते हैं, ए मेजर एक्सिस बन गया. दिस इज ए डैश एंड दिस विल बी ई डैश ले लेते हैं, एंड दिस इज बी डैश. सो नाउ E1 का इलिप्स क्या है? मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस ऑफ E1 is a dash, that is equal to 2a. Measure axis of E2 ellipse is कितना आएगा? इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 कॉमा बी और 0 कॉमा कैपिटल बी, 0 कॉमा माइनस बी. देयर इट इज. सो दैट कितना आएगा? बी बी डैश इक्वल टू 2b. तो E1 का इलिप्स equation of E1 is already given. So E1 means here equation it is given that x square y square by b square equal to 1. माने x square by a square plus y square by b square equal to 1. तो इसका इसेंट्रिसिटी ले लेते हैं E1 square root of 1 minus b square by a square. Okay. Now second ellipse, that is E2. How to take E2? देखो मेजर एक्सिस दिस, माइनर एक्सिस कितना आएगा इसका E2 का? ए डैश होगा. तो लेट अस एज्यूम x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर b is greater than a. b is greater than a. Let us assume the equation of E2, x square by b square plus y square by a square equal to 1, because here the minor axis of this ellipse E2 is 2a.
and major axis is capital 2 into 2 times of capital of B. Now eccentricity E2 square root of 1 minus A square by B square, because B is greater than A. So according to question, both the eccentricities of two ellipses are equal. So that means, so E1 equal to E2, E1 equal to E2. टेक इट इज एज E, हम ले लेते हैं E ले लेते हैं. तो पहले E1 इक्वल टू E2 करने से क्या होगा, E1 स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर. तो कितना आ रहा है देखिए, उसका कितना आ रहा है, तो मैं मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. तो 1 1 कट गया, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा देखिए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, ए टू द पावर 4 बाई बी स्क्वायर. मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बाई बी. ये हो गया बी का वैल्यू. हमको निकालना क्या है देखिए, बोला इसमें एक चीज बोला देखिए, एंड द फोसाई ऑफ E2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस. फोसाई, अभी देखिए इसका फोसाई कितना होता है E1 का यहाँ पर. सो दिस इज ए कॉमा 0 माने AE1 अगर ले लेते AE1 कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस AE1 कॉमा 0. अभी इसका फोसाई ले लेते हैं, इसका फोसाई ले लेते हैं A0 कॉमा AE2. ए नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा, BE2, क्योंकि ना इसका मेजर एक्सिस है 2B, तो इसलिए इसका ए वाला पार्ट ले लेते हैं B. तो BE2, तो अभी यहाँ क्या बोला देखिए, BE2. अभी इसको एक काम करते हैं, इस तरफ से इसका मेरे को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ऑलरेडी मैं एक रिलेशन मिल गया, B इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी. सो नाउ डायग्राम रहने दीजिए, क्वेश्चन हटा देते हैं, नहीं क्वेश्चन रहने दीजिए, इसको हटा दे रहे. सो नाउ यहाँ क्वेश्चन में बोला है देखिए, द फोसाई ऑफ E2 माने इस इलिप्स का फोसाई है क्या है, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E1. तो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस कितना है 0 कॉमा बी. तो मैं उसको ले लेते हैं BE2 इक्वल टू बी. सो मतलब E2 इक्वल टू बी बाई कैपिटल बी. E2 हम ले लिए. अभी E2 तो क्या है, E2 का मतलब यहाँ पर E होगा, पहले से लिख दिया, E2 इक्वल टू E इक्वल टू बी बाई बी. तो निकालना क्या है, इसेंट्रिसिटी निकालना है. तो हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं यहाँ पर. सबसे पहले देखिए ये जो B है ना, B को रिप्लेस कर दीजिए. तो B को रिप्लेस करने से कितना आएगा, सो E इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. सो मतलब कितना आ रहा देखिए, E स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, दिस वन. बी स्क्वायर कितना आ रहा है A4 बाई बी स्क्वायर, माने यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया. तो इसका मतलब कितना आ रहा है, E इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा आके खड़ा हो गया. तो फॉर्मूला क्या है, नेचुरली E इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो दैट इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर. तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो E इक्वल टू बी स्क्वायर बाई स्क्वायर मीन्स 1 माइनस स्क्वायर. सो स्क्वायर plus E minus 1 equal to 0. So this is an quadratic equation of E. So here to find out the value of E, how to find? So E equal to square root of minus 1 plus minus square root of 1 square plus 4 हो गया by 2. So minus 1 plus minus root 5 by 2. So E cannot be negative. So E equal to minus 1 plus root 5 by 2.
दिस इज द आंसर. ई कैनॉट बी नेगेटिव. ई का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है. कैनॉट बी नेगेटिव. सो ए वाला हो गया आंसर. तो मतलब आंसर बिट 4. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. जेई मेंस 2021 इस टाइप का भी क्वेश्चन गिरता है. आपको 3-4 टू मिल जाएगा. देखिएगा, अगर अगर कर दीजिएगा ना तो आपका 12 मार्क्स आ ही जाएगा. जेई मेंस में मैथ्स में अगर आप 7-8 क्वेश्चन देखिएगा जो उनके कौन सा क्वेश्चन इजी करने लायक वाला है तो आप कीजिएगा, तो आपका 10 क्वेश्चन बन जाएगा. 10 क्वेश्चन अगर बना देंगे ना तो 40 मार्क अगर मैथ्स में आ जाएगा ना तो मोर देन 98.5% आ जाएगा मैथ में. बस दैट्स ओके. सो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब and share to your friends. Okay, this is my YouTube channel. I am Subrata Chakraborty, that is Chakraborty Classes. So please like and subscribe. Okay, bye.